Hey guys, welcome you to the second class of final accounts. I hope you all are recap of what we studied in your first class and you go through each and every topics what I explained to you. So before start the second class, let me explain you what we discussed in our first class of final accounts. So we discussed what final account, why final account required, what is the need of final account, and what are the accounts involved in preparation of final account, and what is the purpose of final account. So I discussed three accounts. One is trading, profit and loss, and balance sheet. Then I gave you an example of trading account, how trading account working, and how we will do the trading accounts problem. Okay, so today I will going to discuss about trading accounts format as per your books, and we will do some problem which related to trading accounts. Okay, so please quickly you wrote the format first, then I will explain you trading accounts expenses part, that is direct expenses part. Okay, so please note down first. So I wrote it four column. First one is date column, then particular, then amount, then date, particular, amount. This on debit side, that one credit side. So left hand side will be your debit side, and right hand side will be your credit side. So the debit side will be started with date, particular, amount. Credit side also same, date, particular, and amount. First we will discuss about the debit side items, which is first one to opening stock. Here the amount, then I put to purchase less purchase return, or we may say return outward. If you deduct from purchase to return outward or purchase return, the figure will be your net purchase. Then direct expenses we'll discuss in the note part, with where I can explain you each and every direct expenses. Then your credit side will be by sales less sales return or return inward, which comes at net sales. Then your buy closing stock. Then if your debit side was less than the credit side, then there will be a profit. If debit side was more than the credit side, then there will be a loss. That's the concept. You just wrote down. Then we will discuss about the direct expenses. Okay, so let me erase and discuss about direct expenses part.
Okay, let me erase. I wrote this right. Those who are not yet written, please pause the video and write the same in your notebooks. Okay, so we will discuss first the direct expenses. Okay, so first one will be your direct expenses, right? I said see note below. So we will discuss about direct expenses. It always shows on the debit side of trading account. Okay, it always shows on the debit side of trading account. Okay, so let me explain you how direct expenses was working. Okay, so first thing, we'll note down what are the direct expenses was there. First one will be your carries inward, or we can say carries on purchase. Next one, wages, or we can say wages and salaries, or we can say manufacturing wages, or we can say direct wages. Okay, then the third one will be your factory rent. Okay, then I'm written here. Okay, this part. Then the next part will be your motive power, okay, next one of 3, okay, next one dock charges, okay, next one import duty, number 8 will be your excise duty. Okay, number 8 will be your excise duty. So I already informed and already give you some examples, right? Please understood each and every expenses which you are going to be take into the trading account. Why I am saying this thing? It will be easy to buy it and go write the exam, but it will be very difficult when you forget a single thing in your exam. Then the full problem will be incorrect. That's why if you understood the direct expenses, why the same expenses you are taken or you are treated as direct expenses, then it will be easy for you. By seeing the expenses, you can easily segregate whether it's your direct expenses or indirect expenses. For that point of view, you need to understand each and every expenses meanings. Okay, so I'll explain you single by single what is the meaning, why you are taking the
as a direct expenses. Okay. First one will be your carriage inward or carriage and purchase. That means when goods purchase from us, we need to load and unload. The loading part, when goods coming, we carry the same into us. So to those like, you know, the coolie people, we use them to carry our luggages. Same thing when goods carry from one part to other part, whatever expenses we are incurred on carries the same goods, we called as carriage. So when we paid the amount for carrying the goods and purchase the same, we called as carriage and purchase or purchase inward. Okay, you understood? This thing you understood? Right. Next one, I wrote wages, wages and salary, manufacturing wages, direct wages. What would I written? I written as wages, I written wages and salary, also I written manufacturing wages, and so wrote direct wages. Okay, all are meaning was same, all meaning was same, but in your exam it might be coming different way. Okay, so see, your main problem you will face in exam will be this one, because there are two types of things there: wages and salary, one expenses; salary and wages, other expenses. Okay, wages means those amount which you paid to the direct laborer. Then the question would be, sir, who is a direct laborer? Direct laborer are those laborers who are directly involvement in the purchase of goods or converting raw material into finished goods. To them we call this direct laborer. The amount which are paid to them we call it wages. हम लोग उन लोगों को जो भी पैसा देते थे उसका हम लोग बोलते हैं वेजेस, जो कि डेली बेसिस में देते हैं. ठीक है, अगर आपके एग्जाम में सिर्फ वेजेस वर्ड दिया है तो आप आंख बंद करके डायरेक्ट वेजेस ले लेंगे. ठीक है, पर वेजेस एंड सैलरी एक होगा और एक होगा सैलरी एंड वेजेस. तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर प्रेफरेंस. फर्स्ट लेटर प्रेफरेंस मीन्स ये वाला, फर्स्ट लेटर प्रेफरेंस मीन्स ये वाला वेजेस पार्ट. ठीक है, इधर वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ तो आप कंसीडर करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे एज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगर सैलरी एंड वेजेस दिया होगा तो आप लोग कंसीडर करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ये एक पॉइंट याद रखिए एग्जाम के लिए, जो कि बहुत चांसेस है मिस्टेक होने के लिए. ठीक है, जो है फर्स्ट लेटर प्रेफरेंस. ये समझ में आ गया वेजेस. देन फैक्ट्री रेंट. हम लोग जो फैक्ट्री है, एक चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस शुड बी एन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस होगा और जिस एक्सपेंसेस का आगे फैक्ट्री का वर्ड लिखा होगा वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, हाँ सर, यहाँ समझना है. मोटी पावर हम इसको बोल सकते हैं भी इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं. इसका मीनिंग है मशीनरी चलाने के लिए हम जो पावर यूज करते हैं उस पावर को हम लोग बोलते हैं मोटी पावर. अगर हम लोग पावर यूज करेंगे उसके लिए हमें बिल आएगा, जो कि हर महीने हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करते हैं. हाँ सर, करते, उसको भी हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन ब्रैकेट, इफ द सेम पावर वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल into finished goods in the factory. ध्यान दीजिए, मैं अभी बोल रहा हूँ फैक्ट्री के लिए मोटी पावर. अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन ऑफिस, दैट शुड बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ऑफिस का कुछ भी लेना देना नहीं है हमारा गुड्स मैन्युफैक्चर करने के. पर ये जो पावर है ये अगर यूज होता है, हमें मशीनरी को यूज करते हैं गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसके लिए जो पावर कंज्यूम करता है एक मशीनरी, उसको हम लोग बोलते हैं मोटी पावर. यहाँ तो समझ में आ गया. अब इसका हम लोग बोल सकते हैं अदर वर्ड से लोकल टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स. ठीक है, लोकल टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स. सो अब मीन्स
on tax was levied by the local government or local political party to enter the goods in his states. Okay, अगर हम लोग दूसरे स्टेट से गुड्स लेके आ रहे हैं अपने स्टेट से, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, उड़ीसा में हमारा बीजेडी गवर्नमेंट है और तमिलनाडु में बीजेडी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब भी हम लोग गुड्स तमिलनाडु से उड़ीसा तक लेके जाएंगे, जो उड़ीसा का बॉर्डर है उसमें उड़ीसा गवर्नमेंट का अगर कुछ टैक्सेशन होगा गुड्स एंटर करने के लिए उनकी टेरिटरी में, तो हम लोग वो टैक्स पे करेंगे। जो उसमें जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑक्ट्री। नेक्स्ट आपका है डॉक चार्जेस। ये बेसिकली अगर आप लोग गुड्स परचेज सेल्स थ्रू सी के थ्रू करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शिपमेंट और सी पोर्ट अथॉरिटी जो होता है उसमें भी करते हैं, उनका हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं गुड्स लोडिंग या अनलोडिंग करने के लिए, उनका पोर्ट हम लोग अगर यूज करते हैं, जैसे हमारा रेलवे है, रोड के लिए एनएचएआई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ठीक उसी तरह सी में अगर कुछ ट्रेडिंग होगा तो उसमें पोर्ट अथॉरिटी होंगे। कौन होंगे? पोर्ट अथॉरिटी। तो उन लोगों को जो हम लोग उनका सी साइड यूज कर रहे हैं, उन लोगों को पैसा देने के लिए, यूज करने के लिए जो पैसा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डॉक चार्जेस। समझ में आ गया? डॉक चार्जेस क्या है, ऑक्ट्री क्या है, मोटिव पावर है। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट ड्यूटी। अगर किसी का बिजनेस है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए, वो जो भी गुड्स इंपोर्ट करता है बाहर से अपने लिए, उस टाइम जो भी ड्यूटी पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, उस ड्यूटी को हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ये समझ में आ गया? हाँ सर, ये समझ में आ गया। प्लीज हर एक एक्सपेंसेस का मीनिंग समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नोट कर दीजिए साइट में मैं जो भी बोल रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम के लिए इजी रहेगा आपको डिस्क्राइब करने के लिए ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन डिफरेंशिएट बोथ what can be a direct expenses, what can be indirect expenses. Okay, next one will be your excise duty. It's a duty levied on the, or we can say at the time of manufacture of goods. इसका मतलब जो हमारा ड्यूटी चार्ज करता है गवर्नमेंट, जब भी हमारा जिस टाइम हमारा गुड्स मैन्युफैक्चर होता है उस टाइम हम लोग जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उसी टैक्स को हम लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट करने के लिए एक्साइज ड्यूटी, गुड्स मैन्युफैक्चर के टाइम में गवर्नमेंट जो टैक्स लेविड करता है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, उसके लिए हम लोग जो पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। समझ में आ गया? चलो एक बार नोट कर लो ये सारा। ठीक है, इरेज कर लो अभी इसको। ठीक है, चलो हम लोग दूसरा पार्ट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो मैं ये पार्ट बस इरेज कर हूँ, ये पार्ट है। सो आपका अभी आ रहा है नंबर 9। देखोगे नंबर 9 है फैक्ट्री इंश्योरेंस
फैक्ट्री, लाइटिंग, कोल, गैस एंड वाटर। 10 है आपका रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, इस पार्ट को इरेज कर लो अभी। ठीक है, चलो ये पार्ट में इरेज कर देता हूँ। कमीशन ऑन परचेज। ठीक है, फॉरमैन सैलरी, वर्क मैनेजर्स सैलरी। ठीक है, और होगा 13 we can say purchase insurance in transit। ओके, और एक we can say packaging, और in bracket we can say direct package। ओके, समझ में आ गया। चलो जहां जब फैक्ट्री लिखा होगा वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप बंद कर, सॉरी एक कोट नहीं, एक कोल है। ओके, कोल, गैस एंड वाटर जो यूज होता है। रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन। रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन मतलब अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन करेंगे गुड्स जिसके लिए हमको एक पेटेंट चाहिए और कॉपीराइट चाहिए, अगर हम लोग दूसरा का किसी को लेके आते हैं और उससे हम लोग अपने यूज करते हैं, उसको लेके आके जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उसका जो यूज के उसके ऊपर हम लोग जो पैसा देते हैं उसे बोलते हैं रॉयल्टी। मतलब मेरे पास कुछ पैटर्न नहीं है, कैसा मैं प्रोडक्शन करूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ठीक है, और मैं दूसरा का नॉलेज या टेक्नोलॉजी खुद यूज कर रहा हूँ, उसके लिए मैं उसको कुछ पैसा देता हूँ। तो पैसा कैसा दूंगा, जितना मैं प्रोडक्शन हुआ उसका यूज करके वो प्रोडक्शन के ऊपर कुछ परसेंटेज में इसको पेमेंट करूंगा, उसको मैं बोलता हूँ रॉयल्टी। ठीक है, समझ में आ गया। देखो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है ना, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि गुड्स जब तक सेलेबल कंडीशन नहीं आता है तब तक जो जो एक्सपेंसेस होता है उन सब एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। कमीशन और परचेज, परचेज के लिए अगर कुछ कमीशन पेमेंट करते हैं, फॉर्मल सैलरी लाइक वी कैन से सुपरवाइजर सैलरी। सो कंपनी में एक पर्सन है जिसका अंदर बहुत सारे 5-6 लोग काम कर रहे हैं, तो पर्सन क्या करेगा, उन सारे 5-6 काम देखे उधर ठीक से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, स्क्रूटिनाइज करेगा उन लोगों को वर्क, उनको बोलते हैं हम लोग फॉरमैन सैलरी। वर्क मैनेजर, इसके ऊपर जो मैनेजमेंट होगा, जो भी मैनेज करेंगे पूरा काम को, तो बोलते हैं वर्क मैनेजर सैलरी। सब रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। परचेज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, परचेज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इसका मतलब हम लोग जो गुड्स लेके आता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, तो गुड्स आते टाइम कुछ एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, हमारा लॉस होगा, उस लॉस को रिकवरी करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, उसका हम लोग बोलते हैं परचेज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। पैकिंग, जिसको डायरेक्ट पैकिंग बोलते हैं, मतलब जो कि मैंडेटरी है एक गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको पैकिंग करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट है प्राइमरी पैकिंग को, इसको अदर वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी पैकिंग, तो सबको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? हाँ सर, लो यहाँ पे
सॉरी, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इस सब को नोट कर लो, फिर हम एक या दो प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। नोट कर लो पहले। हो गया, नोट कर लिए। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल गैस वाटर, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, कमीशन ऑन परचेज, फॉरमैन सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, परचेज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, पैकेजिंग जिसका हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट पैकेज या प्राइमरी पैकेज। हो गया यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। तो चलो अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं दो तीन पॉइंट के बारे में, फिर जाएंगे हम लोग प्रॉब्लम करते। इसका भी मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस पार्ट हमारा कवर हो गया, जो कि मैं बोला था सी नोट्स बिलो में, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। फॉर्मल भी खत्म हो गया, निकाल दो अभी। ये नोट करो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, important points will be discussed, ठीक है। फर्स्ट थिंग हम लोग निकाल, फर्स्ट थिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ये आपका आएगा ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, ओके, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब हमारा कितना ओपनिंग स्टॉक है, उसमें हम लोग परचेज ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड करेंगे, उसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेंगे। जरा एग्जांपल याद करो जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था? ये आपका न्यू बिजनेस है, इसलिए इसमें हमारा कुछ भी स्टॉक नहीं आ रहा है, हाँ कि नहीं? तो मैंने सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो जो एक्सपेंसेस है, परचेज टोटल जितना प्राइस सब ऐड किया था। उसमें मैंने क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखा था ना, वही ये है। बस ये एक ओल्ड बिजनेस है, इसलिए इसके पास स्टॉक है, तो उसका जितना स्टॉक किया, इस बार वो जितना परचेज किया, वो परचेज करने के लिए वो जितना एक्सपेंसेस किया, उसके बाद उसका जो स्टॉक बच गया। क्योंकि देखो ये एक्सपेंसेस जो हुआ है इसके लिए हुआ है, तो हम लोग ये दोनों से जो सेल किए, बाकी जो रह गया तो एक्सपेंस भी रह गया ना, इसमें उसका अमाउंट एक भी रह गया ना, हाँ। तो वो निकालने के बाद जो आया उससे में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब क्या आया? सर आपने बोला था टोटल एक्सपेंस ऐड किया, कॉस्ट आ गया, फिर हमने सेल प्राइस डिसाइड किया, ठीक है नहीं? हाँ सर, अगर सेल प्राइस ज्यादा आया कॉस्ट ऑफ गुड्स से तो क्या आता है? प्रॉफिट। तो हम अदर वे बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू
सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ गया आपका प्रॉफिट। नॉर्मल आपको कभी कभी एग्जाम पे अगर एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसमें आपकी, मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, ये टी फॉर्म है, ठीक है, ये टी फॉर्म है, ओके। आपके एग्जाम पे क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया होगा, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया होगा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा, ठीक है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा, सेल्स भी दिया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सर हमारा जो सीओजीएस है, जो सीओजीएस है, ये सब में ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो चुका है। तो सीओजीएस में हम लोग का परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा कैलकुलेटेड हो चुका है, समझ लो। देखो ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस। अगर फिर भी आपके एग्जाम में कंफ्यूजन आ रहा है, अगर सीओजीएस दिया है, तो इन सब के जो जो अमाउंट आया होगा, जो जो अमाउंट दिया होगा, मैं चार्ट दिया हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए, जो जो अमाउंट दिया होगा, 1 2 3 4 को ये फॉर्मूला डाल दो, जो आपका आंसर आया होगा उसे एक बार मैच करो, इसमें मैच हो रहा है कि नहीं, वो पक्का इससे मैच होगा। मैच हो गया तो इसका मतलब ये सारा इसमें इंक्लूड है। तो इस तो हमें क्या लिखना है अभी इसमें, सर हम डेबिट साइड सीधे लिख लेंगे सीओजीएस, उसका अमाउंट डाल देंगे, क्रेडिट साइड सेल्स लिख लेंगे, उसका अमाउंट डाल देंगे। अगर सेल्स ज्यादा आया तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर सेल्स कम आया तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। क्योंकि मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत चांसेस है गलती करने की, क्योंकि स्टूडेंट फोर्स में होगा तभी, टाइम कम होगा तो पूरा ले लेंगे, सेल डाल लेंगे, फिर बोले सर हमने सही करके आया, और उसमें ये गलत हो जाएगा। अगर सीओजीएस दिया है एग्जाम में तो बस सेल्स एंड सीओजीएस लेना, कुछ भी कंफ्यूजन मत होना, डायरेक्टली कैलकुलेट करके डाल देना, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया पूरा, ठीक है। एक बार नोट कर लो, फिर मैं इरेज कर देता हूँ इसको। हो गया, इरेज कर लो। हाँ सर अभी इरेज कर लो इसको। चलो दूसरा पॉइंट हमारा जो है, ठीक है, मैं एक लिखता हूं, आप लिख लो। इफ, लिख लो मेरे साथ, एडजस्टेड परचेज given in the question if adjusted purchase given in the question, then please don't take the opening stock and no, not end, opening stock, comma, purchase return, और उनमें से आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके,
क्या बोला, इफ इन योर इफ adjusted purchase given, if adjusted purchase given in the costing, then please don't take opening stock, don't take opening stock, purchase return or return outward and closing stock. So आप सीधे adjusted purchase लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बात नहीं किया हूँ, ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस था, मैं बस बोल रहा हूँ एडजस्टेड परचेज में इसमें क्या क्या नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, परचेज रिटर्न और आउटर रिटर्न नहीं आएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर ये दिया है तो इसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करो, फिर उस तरफ सेल्स जो है सेल्स ले लो, फिर कैलकुलेशन कर लो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये समझ में आ गया? हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गया। देन सेकेंड पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी बताया था, इफ wages and salary given, then treated as direct expenses. Okay, if salaries and wages given, then treated as indirect expenses. ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर, अगर हमारे एग्जाम में ये बात दिया हुआ वेजेस एंड सैलरी, फर्स्ट लेटर वेजेस आया है तो हम लोग उससे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। अगर सैलरी वेजेस दिया है तो हम लोग उससे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इफ सैलरी वेजेस गिवन ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ तक समझ में आ गया? पहला चीज में डिस्कशन किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर मैंने बोला प्रॉफिट के तहत में, फिर मैंने डिस्कशन किया दो पॉइंट जो है, एक अगर आपकी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया है तो आप लोग ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड नहीं लेंगे, उसके साथ क्लोजिंग स्टॉक भी आप लोग नहीं लेंगे। हो गया। नेक्स्ट, अगर आपका वेजेस एंड सैलरी दिया होगा तो उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। अगर आपका सैलरी एंड वेजेस दिया होगा देन आप उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, इसका मतलब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट वन आपका यहाँ तक हो गया। चलो नेक्स्ट वन, जो थोड़ा स्लो है लिखने में वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। पर जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ तब टाइम आप लिखे हो तो स्टॉप राइटिंग, जस्ट लिसन केयरफुली what I am trying to explain you each and every one. Okay, so the next one, closing stock. Normally closing stock always given as a footnote outside the ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ओके, सो इफ मैं भी लिख रहा हूं, इफ closing stock given
inside the trial balance, then you should show the same in the asset side of the balance sheet. ओके, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैंने क्या बोला? इफ क्लोजिंग स्टॉक sorry, normally closing stock always given as a footnote or outside the trial balance. If closing stock given inside trial balance, then you should show the same in the asset side of the balance sheet. ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली हमारा आउटसाइड पीबी के बाहर दिया होगा, एग्जाम फुटनोट बोल, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो आप लोग उसे क्या करेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेंगे, मतलब क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लेंगे, वो सीधे जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है। एक चीज ध्यान दो, हम लोग जब सीओजीस कर रहे हैं उस टाइम भी क्लोजिंग स्टॉक हम लेते हैं, हाँ कि नहीं? अगर ये नॉर्मली कैलकुलेशन है, आपका क्लोजिंग स्टॉक बाय मिस्टेकली टीबी के अंदर दिया है, तब उसको सीधे ले लेंगे बैलेंस के एसेट साइड, उसका कोई लेना नहीं है। नॉर्मल जैसे कैलकुलेट होगा, बट हम लोग पहले जो ट्रेड करते हैं ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस इनकम बोल के दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, वो नहीं दिखाएंगे, सीधा हम लोग ले जाएंगे अपना बैलेंस शीट के एसेट साइड में। यहाँ तक सारे चीज क्लियर है? हाँ, ये सारा नोट्स हमारा अब तक क्लियर है। तो चलो एक छोटा प्रॉब्लम करते हैं, फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लूंगा आपके लिए। नहीं, यस करता हूँ, इसको इरेज कर लूँ। हाँ सर, इसको इरेज कर लूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो दिया है, आप सबको प्रैक्टिस के लिए हमने पीडीएफ देंगे। ठीक है, मैं एक पीडीएफ प्रिपेयर करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो आपको मिलेगा, आप वो प्रैक्टिस करना। जो डाउट है यू कैन आस्क मी, पिंग मी इन द गिवन नंबर। Those problem which I am going to practice in the board, that questions also I can give to you so that it will be easy for you to reference. Okay, तो चलो, मैं बस एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब हम लोग सीधे प्रॉब्लम करेंगे ट्रेडिंग पीरियड सारा, उस टाइम आपका मिल जाएगा पीडीएफ सारा। ठीक है, चलो। सो एक क्वेश्चन है, आपका दिया है क्या क्या, मैं लिख लिया, नोट मिला है। परचेस दिया है 45,500 का, वेजेस 5,000 का, ओपनिंग स्टॉक में वो लिख लो शॉर्ट नोट में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 25,000। ठीक है, सेल्स 68,800। देखो, मैं इसमें कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हूँ, ये मत सोचना कि डेबिट साइड लिख रहा हूँ, ये बस डाटा में लिख रहा हूँ। ठीक है, कैरीज इनवर्ड 1,500, freight and duty 3,500,
परचेज रिटर्न 2500। ठीक है, आप मेरे साथ भी लिख लो तो स्पीड होगा थोड़ा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैं मैन्युफैक्चरिंग को बस MFG लिख रहा हूँ, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस को EXP। ओके, 7500। सेल्स रिटर्न 150, सेल्स रिटर्न 150। पावर 800। कोल एंड कोक 250, कोल 250, ऑक्ट्री 150, फिर क्लियरिंग चार्जेस 350। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे। लिख ले। और हमारा जो है समझ लो क्लोजिंग स्टॉक, ये टीबी के बाहर दिया है, समझ लो, मतलब ऐसे बाहर दिया है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वो कितना है 35,000। ठीक है, assume that closing stock is outside the trial balance। ओके, 35,000 नोट कर ले, नोट हो गया सबका। ठीक है, मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा। ठीक है, चलो हो गए यहाँ तक। यहाँ पे सबसे जरूरत है प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं जिस टाइप का कर रहा हूँ उस टाइप का प्रॉब्लम कीजिए, तभी जाके जो एग्जामिनर है वो आपका जो पेपर करेक्शन करेगा उससे भी अट्रैक्शन मिलेगा पेपर दिखने में। ज्यादा बहुत ज्यादा डाल देंगे एक साथ तो उसको भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो मैं कैसे कहता हूँ, देखो हमारा अकाउंट हमेशा छोटा होना चाहिए, उसका नोट जो है जैसे भी चलेगा। ठीक है, सिंपल मैं अभी लिख रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, नोट देना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, जो भी दिया होगा आपका क्वेश्चन। फिर फॉर्मेट में जैसे बताया था वो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना। अभी तो हमारा डेट नहीं, इसलिए मैं डेट कॉलम नहीं डाल रहा हूँ, बस ये चल रहा हूँ। फिर इसको पार्टिकुलर अमाउंट, क्या आपको बॉक्स सेट कर लो, तो बॉक्स क्या होगा 8 नीचे का मत करना जब तक खत्म नहीं होता। ठीक है, ठीक है, बॉक्स हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्टिकुलर अमाउंट। अब सबके पास पेंसिल होगा, स्केल होगा, तो पेंसिल में ड्रॉ करो, ये थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखूंगा पार्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो पहले क्या शुरू होगा, पहले शुरू होगा तो ओपनिंग स्टॉक, क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है सर ओपनिंग स्टॉक हमारा है 25,000। ठीक है, 25,000 है हमारा ओपनिंग स्टॉक। फिर आएगा टू परचेज, कुछ रिटर्न है क्या, परचेज रिटर्न है क्या, परचेज रिटर्न, हाँ सर परचेज रिटर्न भी है 2500 का। तो हम लोग परचेज रिटर्न, परचेज जो है वो हम लोग अंदर लिखेंगे यहाँ पे
45,500 लेस, तो लेस साइन डाल दो, इधर लिखो रिटर्न, रिटर्न काफी है समझ जाएगा, ठीक है 2,500, इसको दोनों को कितना आ रहा है 43,000, ठीक है यहाँ तक हो गया। चलो यही पे मुझे लिख रहा हूं मैं, बस इतना लिख रहा हूं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेम इधर लिखो सी नोट बिलो, ऐसा कमेंट लिखो सी नोट बिलो, ठीक है ये बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है क्योंकि ज्यादा है। फिर हमारा क्या है सेल्स है 68,800, सेल्स रिटर्न है 150, ठीक है बाय सेल्स 68,800 लेस रिटर्न 150, तो कितना आएगा 68,650 हो गया। देन आउटसाइड दिया है तो इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आ रहा है 35,000, कितना आ रहा है 35,000, यहाँ तक क्लियर है। हमने एक नोट छोड़ा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है तो ये जो है ये आपका फॉर्मेट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है मैं इस पर थोड़ा नीचे नीचे कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है हो गया। सोच लो ये हमारा नॉर्मली प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है मैं बोल रहा हूँ पर आप करना, ठीक है मैं बस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है चलो हमको अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेशन करना है, तो आपको जो नोट दिया होगा मैं एक बार इसमें तो स्पेस मेरा ज्यादा नहीं है, ठीक है इस तरह स्पेस है मैं लिख रहा हूँ स्पेस, ठीक है अब जो ये सी नोट बिलो आप इसको नीचे लिखना, ठीक है इधर लिखोगे नोट, ठीक है इधर नोट लिखो, फिर आपका पहला एक्सपेंसेस जो है मैं डालता हूँ, पहला एक्सपेंसेस क्या है आपका कैरीज इनवर्ड, ठीक है आपका पहला एक्सपेंसेस है कैरीज इनवर्ड, वो कितना है सर कैरीज इनवर्ड हमारा है 1,500, ठीक है फिर आपका क्या है कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, फिर है हमारा वेजेस, वेजेस कितना है वेजेस है 5,000, ठीक है फिर आपका है फ्राइट एंड ड्यूटी, फ्राइट एंड ड्यूटी कितना है वो फ्राइट एंड ड्यूटी 3,500, 3,500, ठीक है फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है 7,500 पावर 800, 7,500 पावर 800, ओके पावर 800, फिर आपका कोल एंड कोक 250, ऑक्ट्री 150, कोल 250 दिख रहा है ना आपका, हाँ ऑक्ट्री 150, क्लियरिंग चार्जेस कितना है 350, इतना एक्सपेंसेस है ना मैंने कुछ छोड़ दिया इतना ही होगा। वेजेस कैरीज इनवर्ड, फ्राइट एंड ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पावर, कोल एंड कोक, ऑक्ट्री, क्लियरिंग चार्ज, ठीक है ये सबका आप एक बार मिला लेना, ठीक है चलो हम मिला लेते हैं कितना आएगा 350, 150, 500, 750 प्लस 800 कितना हुआ 1550, 1550 ये 1500, 3050, 8050,
87 15,050 15,053 कितना हुआ 18,050 ये 500 19,050। अगर ये गलत है तो आप सब एक बार कैलकुलेशन कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। आ गया 19,050। सो अभी ये जो मैंने लिखा था सी नोट बिलो, देखो कैरीज इन वर्क कितना 1500, ये सारा को नोट बिलो लिख लो। ये जो टोटल फिगर आया इधर डाल दो 19,050। ओके, सो अभी हम लोग टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। चलो पहले इसको टोटल करो। ठीक है, टोटल हो गया हमारा। इस बॉक्स को अभी क्लोज कर लो, बॉक्स को क्लोज कर लो, ठीक है। सो ये टोटल कितना आ रहा है 650 1,03,650 आ रहा है, ठीक है। ये टोटल कितना आ रहा है रफली कैलकुलेट कर लो। ये हमारा आ रहा है, अच्छा इसको इधर डाल दो 1,03,650, ठीक है। ये कितना आ रहा है 25, ये 43, 4 to 6 और 68,000 प्लस 1950। मैं यहाँ पर रफली कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपने नोट पे कर लो 68,000 प्लस 1950 0 5 0 70 87,050 कितना आ रहा है 87,050। ये हमारा टोटल एक्सपेंस है। इनकम क्या है 1,03,650, ठीक है। अगर मैं इसको 1,03,650 से 87,050 डिडक्ट करूंगा 0,0600 13,761, आपका प्रॉफिट कितना आएगा 16,600। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 16,600, ठीक है। हो गया? हो गया? समझ में आ गया ना कैसा आ रहा है आंसर? देखो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क के लिए, आपका एग्जाम के लिए, स्पेशल प्लस टू सेकेंड ईयर के लिए। मैंने क्या किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ट्रेडिंग को इतना बड़ा नहीं किया। अगर आप लोग सारा एक्सपेंसेस इधर ही लिख लो इनसाइड में, तो जब भी आप आगे ट्रेडिंग क्लियर करोगे, बैलेंस भी करोगे, तो आपका एक पेज से 2-3 पेज फिर आपको कंफ्यूज होगा, उल्टा उल्टा दिखते, कहाँ छोड़ दिए क्या कर दिए। इससे अच्छा है आप एग्जाम में स्पेस छोड़ दो, ठीक है। एक पेज या 2-1.5 पेज छोड़ दो। ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता है क्या क्या आता है, देखो हमेशा इतना ही आएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नोट एक लिख लो लास्ट में, फिर कुछ डाल दो, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोग नोट पे लिखोगे तो सपोज आप अगर कुछ गलती से ले आप ये नहीं जाएगा, आप नोट पे करेक्शन कर सकते हो। आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, ये जो प्रेजेंट करते हो एग्जामिनर को, उसको दिखने का अच्छा लगेगा कि हाँ ये सही क्या है, मार्क भी आपका अच्छा मिलेगा। समझ में आ गया? फॉर्मेट के लिए भी आप लोग का मार्क रहता है, ठीक है। हाँ सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया। यही सेम फॉर्मेट फॉलो करो, कभी भी थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस के लिए आने के लिए, ठीक है। लेकिन जनरली प्लस टू में हम लोग ये नहीं करते, हम लोग इधर ही सारा डाल के लिख लेते हैं। और ये प्रैक्टिस अच्छा है आपके लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी, और अच्छा स्कोरिंग के लिए भी। समझ में आ गया? एक बार नोट कर लो, जो नहीं किया नोट कर लो। जो ये जो नोट मैंने इधर लिखा है, क्योंकि मेरा नीचे स्पेस नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैं साइड पे लिखा हूँ। आप लोग क्या करोगे, ये करने के बाद नीचे नोट लिखो, नोट लिख के उसके नीचे कर लो, ठीक है। तो आप लोग का हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलो लिख लो एक बार। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस लेस रिटर्न, आप सबके पास ये है, ये आंसर है मेरा। कौन सा वाला? ये है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 16,600। ये भी नोट कर लो, अब खुद भी प्रैक्टिस करो, ये भी अच्छा हैबिट है।
अगर नहीं हुआ तो चेक करो कि ठीक हुआ है कि नहीं। ठीक है, हो गया, चलो यहाँ तक सही है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट फुल्ली द ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट कवर, fully I covered. Then the next class will be I will give you one more example. Practice in yourself and you give me your answers. Okay. Then I will start the profit and loss account in detail. Okay. Till then, stay safe. Thank you. Bye bye.